Hello students, welcome to the class 12th Indian Economics chapter 7 Employment Growth, Informalization and Other Issues, in which we are discussing unemployment. Today we will see the types of unemployment. Generally, there are three types of unemployment: rural unemployment, urban unemployment and other types of unemployment. In rural unemployment, disguised unemployment and seasonal unemployment persist, and in urban unemployment, industrial unemployment, educational unemployment exists, and in other types of unemployment, there are open unemployment, underemployment, and seasonal unemployment, frictional unemployment, and cyclical unemployment. Let us see rural unemployment. Degree of unemployment is more pronounced in rural areas than in urban areas. Nearly 75% of workers in rural areas are working in primary sector. Working in this sector causes two types of unemployment: disguised unemployment and seasonal unemployment. Let us see disguised unemployment. Economists have described most common type of unemployment prevailing in Indian firms as disguised unemployment. It is a situation when more than actually required number of workers are engaged in work. If some of them are withdrawn from the job, the total output will remain unaffected. तो ये कहलाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि जब एक से ज़्यादा व्यक्ति उस काम में लगे रहते हैं तो वह डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है. और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, this is another common form of unemployment prevailing in India. It occurs because agriculture is seasonal in nature. The farmer is unemployed in all off season. तो क्रॉप की कटाई बुआई के बाद किसान जो खाली समय में बैठा रहता है, उसे पास कोई काम नहीं रहता है, यह सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है. यह विशेष करके सीजनल एक्टिविटी शुरू होने पर मिलता है, नहीं रहने पर काम नहीं रहता है. और जैसे ब्रिक मेकिंग, शुगर केन क्रशिंग, आइसक्रीम मेकिंग, वुलन प्रोसेसिंग एट्सेट्रा, ये सब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है. और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में आता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? It refers to the unemployment which occurs because of modern industrial development, which is based on adopting capital-intensive technology that has uses labor-saving devices. Hence, many people are rendered unemployed. तो नई टेक्नोलॉजी आने से जो इंडस्ट्री में लेबर सरप्लस कर दिए जाते हैं, उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है उसे कहते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट. और दूसरी चीज़ है, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में एब्जॉर्ब करने की, एम्प्लॉयमेंट देने की क्षमता नहीं बढ़ रही है, जिसकी वजह से भी इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है. और ग्रामीण क्षेत्र से रोज़गार की तलाश में लोग माइग्रेट करते हैं शहर की तरफ इंडस्ट्री में काम खोजने के लिए, वो तो वहाँ भी उसकी वजह से भी इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देता है. एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? दिस इज अनदर सीरियस प्रॉब्लम द कंट्री फेसेस सिंस इंडिपेंडेंस. देयर हैज़ बीन ट्रिमेंडस एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज एट स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल. दिस हैज़ लेड टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ educated persons in the country, but this education is general in nature as there is lack of vocational and technical education in India. The result is a specific educated unemployment in India. Other types of
अनएम्प्लॉयमेंट में आता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहलाता है? इट रेफर्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पीपल आर एबल एंड विलिंग टू वर्क बट फेल टू गेट वर्क। दे आर रेडी टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट बट देयर आर नो जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। तो इसमें ओपन अनएम्प्लॉयमेंट काम करने के लिए तैयार है लेकिन प्रिवेलिंग वेज रेट पे, उसी दाम पे, उसी सैलरी पे, लेकिन लोगों को काम नहीं मिलता है, तो यह ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा एजुकेटेड है, कम एजुकेटेड, कम स्किल्ड का काम कर रहे हैं, वे अंडर एम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं। और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इट अराइजेज ड्यू टू द मिसमैच बिटवीन डिमांड of a specified type of workers and unemployed person. It exists because of structural changes in the economy. This may be due to change in technology, because of which persons who are trained to work with old technologies are no longer required and are rendered unemployed. Change in the pattern of demand, because of which new changes in the methods of production are required and persons who cannot match the requirements are terminated. उसके बाद नेक्स्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये होता है कि इट अकर्स व्हेन वर्कर्स लीव वन जॉब एंड नीड सम टाइम टू विंड अप द प्रीवियस जॉब एंड अंडरटेक सम formalities to join the new one. In this process they are not working for some time, hence will be called frictionally unemployed during this time period. एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, उतने दिन व्यक्ति बेकार रहता है, अनएम्प्लॉयड रहता है, तो इसको कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, दिस प्रॉब्लम इज कॉमन in capitalist advanced nations which face trade cycles of boom, recession, depression and recovery. यह एडवांस कंट्री में देखने को मिलता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें कि जैसे बूम पोजीशन पे बिजनेस है तो ज़्यादा वर्कर, ज़्यादा प्रोडक्शन ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रहता है तो लोगों को रोजगार रहता है। लेकिन रिसेशन और डिप्रेशन पीरियड में कम प्रोडक्शन होता है, कम वर्कर की आवश्यकता होती है, तो उसकी वजह से लोगों को अनएम्प्लॉयड कर दिया जाता है। और डिप्रेशन में तो स्वाभाविक सी बात है, प्रोडक्शन कम हो रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट ही रहेगा। तो यह है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, यह जनरली कैपिटलिस्टिक कंट्री में देखा जाता है। अब आइए देखते हैं कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। क्या कारण है बेरोजगारी बढ़ने का हमारे देश में? पहला है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या की वृद्धि बड़ी तेज़ी से हो रही है, जो हाई बर्थ रेट है पॉपुलेशन ग्रोथ में इंडिया में, यह अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जो जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट जितनी तेज़ी से होनी चाहिए उतनी तेज़ी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटी कम हो रहे हैं। लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में भी प्राइमरी सेक्टर में जो डेवलपमेंट जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है, लो लेवल का हो रहा है। लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री में भी लो लेवल का डेवलपमेंट है, हायर लेवल का डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। तो लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ रही है। लैक ऑफ वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी होने की वजह से भी बेरोजगारी फैल रही है, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से बेकारी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उसके बाद है लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, हमारे देश में कैपिटल फॉर्मेशन में कमी आ रही है, क्योंकि इनकम नहीं हो रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, इनकम नहीं हो रही है, तो सेविंग नहीं बढ़ रही है, और सेविंग न बढ़ने से कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं। इन मोबिलिटी ऑफ लेबर, और देयर इज लो लेवल ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर इन इंडिया। देयर आर मेनी रीजन्स सच एज लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट जॉब मार्केट्स, फैमिली सर्कमस्टांसेस। कुछ लोग तो
जॉब है लेकिन जानते नहीं है कि उनके स्किल का जॉब वहाँ पे है, उन अवेयर नहीं है, तो उन्हें उसकी वजह से बेकार रहते हैं। उसके बाद फैमिली के कंडीशन की वजह से कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि फैमिली को छोड़कर नहीं जा सकते, तो इस चीज़ की वजह से बेकारी रहती है। लैंग्वेज प्रॉब्लम, एक जगह से दूसरी जगह दूसरे स्टेट में जाएंगे तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम आएगी, इसकी वजह से नहीं जाते हैं। धार्मिक रिलीजन कारण है जिसकी वजह से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना चाहते हैं। विच हिंडर द मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स टू बेटर और न्यू जॉब्स। उसके बाद जॉइंट फैमिली सिस्टम भी बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में एक दो आदमी काम करते हैं, कम अर्न करते हैं, बाकी लोग बैठ कर खाते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से भी बेरोजगारी है। There is a still joint family system prevalent both in rural areas and urban areas. In large families, many family members depend on the joint income of the family. Its effect is similar to effect of disguised unemployment, as the joint income earned by one or two family members is divided among many family members. तो ये सारे रीजन हैं हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के। अब आइए देखते हैं इफेक्ट्स, कंसेक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। क्या इसका प्रभाव पड़ा बेरोजगारी का हमारे देश पर? पहला, इकोनॉमिक इफेक्ट, इसकी वजह से प्रोडक्शन में फॉल हुआ और इनकम में फॉल हुआ। लो लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग में कमी आई, इन्वेस्टमेंट में कमी आई और गरीबी बढ़ गई देश में। सोशल इफेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, सामाजिक तौर पे इस पर क्या प्रभाव पड़ा इसका? लो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वह घट गई, लो लेवल की रही, वो स्टैंडर्ड नहीं हो सकी। इनइक्वालिटी इन दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और इनकम का असमान वितरण की वजह से भी ये हो सका। और सोशल अनरेस्ट, जिसकी वजह से सामाजिक अस्थिरता, समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। अब आइए देखते हैं सजेशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? पहला, इंक्रीज इन ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। हमको जीडीपी का ग्रोथ रेट बढ़ाना पड़ेगा हर सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर में हमें अपना ग्रोथ रेट बढ़ाना पड़ेगा। और पॉपुलेशन कंट्रोल, हमको पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए उपाय करने पड़ेंगे, और यह फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट करना पड़ेगा। ज़बरदस्ती नहीं, जोर ज़बरदस्ती नहीं, लोगों के अंदर जागरूकता फैला करके अपनी आपसी रजामंदी से वे फैमिली प्लानिंग करें और अननेसेसरी संतानोत्पत्ति ना करें, जिससे कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। और इसके लिए एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी लाइक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स शुड बी इनिशिएटेड टू कंट्रोल पॉपुलेशन। तो इसके लिए लोगों में अंदर जागरूकता आनी चाहिए, एजुकेशन आनी चाहिए, और वे स्वयं पॉपुलेशन पर कंट्रोल करें, किसी के दबाव में आकर के नहीं, स्वेच्छा से। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, और एग्रीकल्चर सेक्टर में हम डेवलपमेंट करके कर सकते हैं, रोजगार के अवसर बढ़ा सकते हैं। एजुकेशनल सेक्टर रिफॉर्म्स, एजुकेशनल सेक्टर में जो एजुकेशन एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है उसमें थोड़ा परिवर्तन, जो डिग्री ओरिएंटेड है इसको हमें जॉब ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा, तब हम कर सकते हैं। फाइनेंशियल हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं उन्हें फाइनेंस की कमी रहती है, तो उनको फाइनेंस की मुहैया करा के सस्ते रेट पर लोन दे करके उन पर बेरोजगारी दूर की जा सकती है, ताकि वे स्वयं का सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकें, स्वयं का काम कर सकें। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। हमको देश में हेल्थ, एजुकेशन, हॉस्पिटल, डैम, रोड, विभिन्न प्रकार की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ताकि लोगों को फैसिलिटी मिल सके और वे सही दिशा में कार्य कर सकें और अपने आप को एनेबल कर सकें ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए और इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। जब डेवलपमेंट होगा तो कई
रास्ते खुलेंगे लोगों के रोजगार के और आगे बढ़ने के। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। हम एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स जो तरह तरह के हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर लॉन्च किए गए जाते हैं। स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, उसे वेज एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, और या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा किया जा सकता है। और सम एरियाज वेयर सच प्रोग्राम्स कैन बी इनिशिएटेड आर इरिगेशन, पावर, एग्रीकल्चर, सॉइल कंजर्वेशन एट्सेट्रा। और इस तरह से हम बेरोजगारी अपने देश से दूर भगा सकते हैं। अब आइए देखते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रही है, क्या प्रोग्राम्स रहे हैं समय समय पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। पहला है डायरेक्ट एफर्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट एफर्ट। गवर्नमेंट की डायरेक्ट एफर्ट में क्या आते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज people in various departments for administrative purposes. It runs industries, hotels and transport companies, and hence provides employment directly to workers. People working in government schools, government hospitals, government offices are some of the examples of direct employment by the government. Or indirect efforts, where production of goods and services by government enterprises increases, then private enterprises which provide raw materials to government enterprises will also be able to increase production of goods and services produced by them. It will generate employment opportunities in private sector too because of increase in their sales and output. For example, when a government-owned steel company increases its output, it will result in increase in output and employment in private companies also, which purchase steel from the government company. Let us see special measures undertaken by the government to solve unemployment. Many programs that the government has implemented aim at alleviating poverty through employment generation. That is why these are also known as employment generation programs. All these programs aim at providing not only employment but also services in areas such as primary health, primary education, nutrition, assistance for people to buy income and employment generating assets, development of community assets by generating wage employment, construction of houses and sanitation, assistance for constructing houses, laying of rural roads, development or wastelands, degraded lands, laying rural roads, development of degraded lands. All these are the various measures through which government solve the unemployment. And some following are the specific programs aiming at generation of employment. Rural employment, number one, rural employment generation program, in short it is called REGP. Number two, Prime Minister Rozgar Yojana, PMRY. Number three, Swarna Jayanti Shahri Rozgar Yojana, SJSRY. Number four, Jawahar Swarna Jayanti Gram स्वरोजगार योजना SGSY. नंबर 5, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY. नंबर 6, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. All these are the various schemes launched by the government from time to time to generate employment in the economy and solve the problem of unemployment in country. In this way we have covered this chapter. Next day we will discuss the next chapter, that is chapter 8, infrastructure. Rest is well. Thank you.